Stand-up comedy. I remember I started watching these back in my college when AIV started to come up. And a lot of other stand-up comedians also started to gain fame on YouTube and Instagram as well. To be honest, I really don't know how these people do it, because when I crack a joke and I get no laughs in a room full of people, my ears start to burn out. And it's not just only this; they have to prepare a script for each and every set that they do. So I actually talked about a lot of these things and a lot of other things as well with a stand-up comedian, Laksh Nayak, a great and a genuine person. To be honest, I can't wait for you guys to actually listen to him answer all the questions so genuinely and frankly. So without further ado, enjoy episode number 28. Thank you so much, Lux, for doing this episode with me. To be very honest, I actually wanted to do an episode with a stand-up comedian for a long time. I know you don't do this full time, but you have some experience in it, and I really want to know, how the journey of a stand-up comedian can be. Plus, what is the life of a stand-up comedian like? Because a lot of people have certain stereotypes against it, and I just want to Mhm. break those barriers. So, thank you so much for doing this episode. Yeah, let's break. Hi, I am Laksh. I am doing stand-up since last 4 years now, and I started doing open mics and stuff in Ahmedabad. Then later on, we founded U Comedy Club. It's a comedy collective by comics for comics. We do regular open mics and curated shows. 3-4 open mics per week in Ahmedabad, and we host other comics from other cities like Bombay, Delhi. So yeah, that is it pretty much. Okay, that is great. I'll jump directly to the questions. So Yeah, there yeah. is a very, I think vague description of what a stand-up comedian can be, or what is stand-up comedy. So I would really like to ask you, I mean, what is stand-up comedy basically? What is as we have seen a lot of people do stand-up comedy in the past few years, and it has become a culture where people actually do it for a profession and as a Hmm. full-time career. But पहले हम लोग देखते थे कि सोनी में स्टार प्लस में there used to be a lot of different kinds of comedy, I think series and Hmm. everything that used to come up. तो उसमें अलग ही होता था. तो आप कैसे समझाओगे Hmm. कि what is basically stand up? Stand up is मतलब हम लोग ने मेरा पहला इंट्रोडक्शन तो इंटरनेट के पहले भी जो मैंने देखा था दैट वाज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज. Yep. एंड Yep. इसमें ये लोग थे राजू श्रीवास्तव. Hmm. ग्रेट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स. उसमें भी अलग अलग जॉनर्स थे. स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, ऑब्जर्वेशनल थी. बट वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो टाइम के साथ पुराना हो गया. मतलब अभी भी वो शोज होते हैं. बट व्हाट वी डू एज ऑफ नाउ, जो हम लोग ने वेस्टर्न कॉमिक्स को देखा यूएस के, मतलब वो भी काफी सिमिलर ही है. खाली अपना वो था कि थोड़ा वैसा पुराना टाइप और ये सब का था. तो वो लोग का थोड़ा आर्ट फॉर्म अपने से पुराना है. स्टैंड अप इज जोक्स, मतलब टेलिंग योर लाइक होता है कुछ काफी वेग और अजीब चीजें तेरे दिमाग में रहेगी, एंड विच यू थिंक इज फनी, Yeah. or you try it, and sometimes it is funny, sometimes it is not. So if it works, it's a joke. If it doesn't, you are an asshole. तो मतलब वो है, Okay. ओपिनियन है किसी किसी के, किसी किसी का वे ऑफ वेंटिंग थिंग्स आउट. किसी Yeah. किसी को बस हंसाने में मजा आता है. तो a person telling a joke on a stage and getting a laugh is stand up. Okay. Okay. I mean, that pretty much sums up, to be very honest. But what made you, choose stand-up comedy? What was your motivation behind doing it? As you said that you started when you were in college, and you have been doing it since that time. So, what was your motivation behind that? Motivation तो यार as such, like I can tell you how I started. So I Okay. saw one video, किसी कोई तो बाहर का कॉमिक था, मेन काली नहीं था शायद.
एंड उसको देख के मेरे को लगा कि ओ फक, ये तो क्या सही चीज है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैंने एक इंडियन कॉमिक को देखा, मैं बोला ओ फक, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि यार शुड गिव इट अ ट्राई। और मेरे को ऐसा होता है कि लाइक मेरे ऐसे ओपिनियनेटेड जोक्स सेट्स काफी नहीं है, कुछ कुछ है, और जो अभी तक मतलब मैं काम कर रहा हूँ उस पर। तो किसी किसी में मेरे को सही में ऐसा रहता है कि यार मेरे को बस लाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और किसी किसी में मेरे को ऐसा है कि मेरे को आई वांट टू मेक अ पॉइंट आउट ऑफ दिस। तो मोटिवेशन तो मैं सच कुछ ऐसा, मेरे को बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, इसलिए Okay, बस ऐसे स्टार्ट किया और अभी तक कर रहे। okay, that's great. Yeah. I mean, there can be a lot of perspectives on different things, but yeah, आपका I think your motivation has been pretty straightforward कि you just wanted to try this and it's just something that you are liking to do and अभी आप करते रहोगे जब तक आपको पसंद आ रहा है, बाद में पता है. It's something like that. So yeah, okay, understandable. So if this is something that you started, was there anything else that you wanted to do? Like other than stand up? Yeah, other than stand up, or yeah, you can say that. इंस्टेड ऑफ स्टैंड अप तो यार मैं बहुत मैं कभी ऐसा फोकस्ड इंसान रहा नहीं हूँ लाइफ में, सो आई पिक समथिंग एंड देन आई लीव इट वेरी क्विकली। सो इसके पहले आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, मतलब आई स्टिल एम, बट इतना एक्टिव नहीं हूँ। बट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड मैं रिप्रेजेंट किया था डिस्ट्रिक्ट और ये सब को। बट वो उसके बाद ना छोटा छोटा लाइक आई यूज्ड टू प्ले अदर स्पोर्ट एंड देन लीव इट फॉर लाइक आई यूज्ड टू प्ले फॉर 6 months, बाद में छोड़ देता था ये वो। तो स्टैंड अप है जो लंबे टाइम तक मैंने पकड़ के रखा है, बिकॉज इस पे वो किक रहता है यार। मतलब ओपन माइक्स जनरली ऐसे ही होते हैं, 3-4 लोग हो, किसी में 5-6 लोग हो, तो इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग। तो ऐसा open mic scene is like pretty fucked up. It is very depressing and you should not try. If you want to try stand up, don't. That is my Okay. suggestion. This is तो वो बहुत something else खराब एक जोन है, altogether. Okay. बट Why do वो you ऐसा say रहता है so? कि वो 3 या व्हाट खराब क्यों है? खराब है, मतलब यार तुम इनिशियली जब स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, कि तुम्हें वो जो अच्छा पार्ट देख के तुम वो लुक्रेटिव चीज देख के तुम उसमें घुस जाते हो, बट उसके अंदर इतना काफी रोने का है। मतलब इफ आई स्टार्ट क्रिविंग, ये पूरा 1 घंटा उसी पे निकल जाएगा। सो इट इज नॉट अ हैप्पी स्पेस टू बी वेरी फ्रैंक। Okay. Is it just at first और आगे जाके भी ऐसा ही सीन रहेगा काफी? आगे जाके का मेरे को पता नहीं अभी तक, पर नहीं, in the sense for जैसे आपने बोला ना, the first time you try, it's not that जो आपको दिखता है वही आपको मिलेगा, but it's been a long time for मतलब you. initially when you see someone performing on stage और तुम्हें उसके पीछे का सारा डायनामिक्स नहीं पता होता है। Yeah, absolutely. how to get on stage, how to write 5 minutes, how to do 10 minutes, 30 minutes solo, और फिर जब तुम्हारे पास मटेरियल बन रहा है धीरे धीरे और कोई लोग आ नहीं रहे तुमको देखने, सो ये वो हसल है उसका, जिसका मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारा अगर टिकट सेल्स अच्छा है और तुम 10 to 15 people is a very good number that I feel personally, but the scene is pretty bad, जिसमें 3 लोग होते हैं, 4 होते हैं, कभी कभी कोई भी नहीं होता है। so you go to the venue like 8 कॉमिक्स होते हैं, कोई 10 किलोमीटर दूर से आया, कोई 15 किलोमीटर, और फिर ओपन माइक कैंसिल हो जाता है। तो ये सब तुम्हें 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब तुम, और इनिशियली इतने इजीली स्पॉट्स भी नहीं मिलते, जब स्पॉट्स मिलना चालू होते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें पीछे का गेम पता चल जाए कि ओ फक, ये वैसा नहीं था जैसा दिखता था। तो ऑफ कोर्स जिनका टिकट सेल्स अच्छा है, जो काफी इजीली वायरल इज रॉन्ग टर्म, बट जो वायरल हो रहे हैं, सीन ओवर देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट, और जो दूसरा सीन है वो काफी 360 डिग्री फेस शिफ्ट है। या ओके, स्ट्रगल इज टोटली डिफरेंट। तो starting something this unorthodox, something like you come from a background where I think your family is into business and you have done your engineering, अब आप जा रहे हो पूरे के पूरे क्रिएटिव फील्ड में, तो I know you have not taken this up as a full-time thing, but I think there can still be a lot of prejudices कि आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा होगा, आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स किसी ने कुछ कहा होगा। So have you faced something like that, or everybody was really supportive and enthusiastic about it?
सपोर्टिव लाइक फैमिली इज सपोर्टिव, सबकी फैमिली होती है, बट सब पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि किसी को अपने बेटे को गरीब या भिखारी नहीं देखना है. सो मतलब दे वांट यू फाइनेंशियली स्टेबल. सो ऑफ कोर्स दैट थिंग इज कांस्टेंट कि वैसा है कि वो दैट इज नेवर गोइंग टू बी ऐसा कि तू कर हम लोग बैठे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है वो किसी के लिए भी इतना सिंपल हो. Because they want you to see they want you to see earning money through this, and initially it is not that smooth. तो of course उनका concern तो रहता है, तो वो मतलब साथ में तुम्हें you'll have to fight that. There is no other option. Like उन्होंने वीडियो देखा है YouTube वाला, so if they meet someone family friend ऐसे तो उनको तभी ब्रैग कर देते थोड़ा, but फिर वापस कि वो एक ही चलता रहता है. So सपोर्टिव है भी और चल रहा है वैसा है. आपका फर्स्ट एवर जो शो था जब आपने स्टैंड अप किया था ऑन द स्टेज, व्हाट वाज द फीलिंग दैट यू हैड? फीलिंग तो काफी अच्छा था. लोग हंसे थे, थोड़ा हंसे थे, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक मतलब जो भी पहले स्टार्ट करता है उनके पहले जो फर्स्ट जो काफी ऐसे घटिया ही होते हैं, तो नॉट समथिंग दैट आई वाज प्राउड ऑफ. आई एम स्टिल नॉट. तो रोडीज और ऐसे सब जोक्स है, रोडीज पिट्सविला ये सब, आई स्टिल हेट दोस शोज, बट अभी ऐसा लगता है कि इस पे तो क्या ही मजाक हो रहा है. बट हाँ अच्छा था. अहमदाबाद में था. इट वाज 2017 में सितंबर. या गुड रूम, स्मॉल रूम. आई मीन इट वाज योर फर्स्ट एवर स्टेज परफॉर्मेंस, या आपको ऐसे स्टेज में चढ़ के कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो? नहीं, it was my first ever stage performance. And you were not nervous, nothing, anything? कुछ भी नहीं? Of course I was nervous. Of course. In the sense होता है ना स्ट्रेट फ्राइड होता है बहुत अलग ही, जिसमें आप बहुत सोचते हो कि जाऊं या नहीं जाऊं. मतलब मेरे को जोक्स करने थे, but I was nervous. मेरी फटी थी, मैं डर रहा था, तो वो तो था. और अभी भी काफी बार वो ऐसा नहीं होता है, मतलब बाकी सबका होता है का पता नहीं, बट मेरे को अभी भी काफी बार ऐसा नर्वसनेस होता है जब कोई बड़ा शो या जब टिकट्स चली गई हो. मेरे को हम लोग यूज्ड टू रहते हैं 4, 5, 6 लोगों के, पर जिस दिन 15 या 20 लोग आने वाले पता होता है, ऐसा लगता है कि फक ये तो अलग एनवायरनमेंट है, अभी इस पे कैसे करें. ओके, वो नर्वसनेस तो रहती है कभी-कभी. हाँ, वो तो एक चीज आपने बहुत अच्छा बोला कि yes, that nervousness is going to be there. Because I don't think a lot of people are ready to talk about कि हाँ मैं nervous रहता हूँ, but they just say कि हाँ हो जाता है, अब तो कोई problem नहीं होता. But it's not that easy, I think, to go on stage and make people laugh all the time. It's not that easy. Or at least get a laugh. You're not even sure that you'll get the laugh, but at least get one laugh. You are getting used to going on stage. That is like a very casual thing now. But still अभी भी when you are trying something new, a new joke, तो मतलब स्टेज फ्राइड नहीं है, बट वो रहता है कि मन में रहता है कि चलेगा नहीं चलेगा. और जब लोग आए हुए रहते हैं और जब तुम्हारा मतलब शॉर्ट चीजें नहीं चलता है, और मतलब 6 चीजें होता है, तुमने सोचा कि ये चलता है, उसमें से बीच में एक चीज नहीं चलता है, तो वो ऐसा ओ फक अभी क्या वो आता है थोड़ा. अभी भी होता है वो, और ऐसा कोई शर्म नहीं उसको एक्सेप्ट करने में कि आई थिंक बाय द लाइक धीरे-धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि what goes and what doesn't with your own experience that you have learned already. तो उस हिसाब से one major question that I really want to ask you is that what about the freedom of speech that we always talk about on social media whenever it comes to stand-up comedy and everything, or even in news channels we see it all the time. What kind of role does it play in respect to stand-up comedy, according to you? यार मेरा थोड़ा ओपिनियन इस पे ऐसा यूजुअल नहीं है जो सब लोग बोलते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी हद तक है, तो मैं उसके अराउंड खेलना आना चाहिए. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो चोरी करना इज नॉट अ क्राइम, चोरी करके पकड़ाना इज अ क्राइम. सो तुम्हें चीज करनी आनी चाहिए. और यार देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना सीन काफी हद तक यूएस के सीन को मतलब वही है जो अपने पास रेफरेंस पॉइंट है. अपने यहाँ पे कोई राजू श्रीवास्तव को देख के नहीं कर रहा है कि मेरे को ऐसा करना है. अपने इधर ऐसा है कि मेरे को लुइस सीके जैसा, मतलब समवेयर अराउंड दैट. बट लोगों को वो भी समझना होगा कि ये यूएस नहीं है.
इधर आर्ट फॉर्म नया है, इधर लोग अलग है, इधर लोग पागल है, तो तुम्हें वो उस हिसाब से डील करना आना चाहिए कि तुम वैसे नहीं, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकते, यू हैव टू प्ले इट योर ओन वे। तुम बोल सकते हो, काफी लोग बोलते काफी हद तक, और दे आर वेरी सेफ, दे आर प्लेइंग सेफ, और काफी शोज कैंसिल भी होते हैं, नो डाउट, वैसा वो नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम फुल फ्रीडम है ये वो, बट है जो खेल रहा है, जिसको खेलना आता है वो खेल रहा है अच्छे से, जिसको मतलब ऐसा कोई जिसको नहीं आता, ऐसा नहीं बोल रहा खेलना नहीं आता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज लाइक, लोगों को ऐसा लगता है, काफी लोग ऐसा ट्वीट्स करते हैं कि कुछ भी बोलने नहीं, भैंसो ऐसा तो नहीं है, वैसा फुल वैसा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने देते, वो है कि you have to play it smart, that's it. You know, you can't disrespect in a way कि somebody doesn't take it as a laugh, but आप उसको पूरा ही disrespect करवा दियो, like there is a way to do. अभी मैं रैंडम चल, वो शो का अलग है, मैं कुछ तेरे को ऐसा ही बोल लूं, माँ पे बोल लूं, तो मेरे को तो चाटा मारेगा ऑब्वियस है उसमें, कोई ऐसा, और मेरे को खा भी लेना पड़े, तो वो नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन वही है कि तुम्हें खेलना आना चाहिए, दैट इज इट। और इधर वैसा है कि इधर अपने बाहर तुम वो, इधर पीपल इमोशनली काफी अटैच्ड है काफी चीजों से, yes बी इट रिलीजन, बी इट फेस्टिवल्स, बी इट किसी का भी हो, धर्म हो, भगवान हो, ये हो, तो जब अपने मेरे को पता है कि अगर ये बोलूंगा तो डाइसी होगा, इससे मेरी गांड लगेगी, एंड देन आई चूज, वो मेरे चॉइस पर है, फिर मुझे बोलना है नहीं बोलना है, और इफ आई एम सेइंग समथिंग तो आई शुड बी रेडी फॉर द रिपरकशन, और वो जो लोग बोलते हैं वो लोग उसके एकदम मतलब वो भी है, खेलने को रेडी भी है, तो बट वो ये कि ये इतना सेंसिटिविटी होना चाहिए कि लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस के माइंड में व्हाइल प्लेइंग द जोक, और जो आप बोल रहे हैं कि प्ले इट सेफ वाला ही सिचुएशन रखना चाहिए, लाइक आई नो दैट सेफ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लोगों को कि प्ले इट सेफ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं खुद आई प्ले सेफ, मेरे को पता है कि इफ आई वांट टू डू दिस लॉन्गर, तो मेरे को वो एक बार मेरा वो बेस बन जाएगा, वेयर आई एम पावरफुल इनफ, वो भी है कि यू आर नेवर पावरफुल इनफ इन फ्रंट ऑफ अ मॉब या 10-15 हजार के लोग की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं बोल रहा कि जब तुम जोक लिख रहे हो तो ये माइंड में रख के लिखो, नहीं वैसा नहीं, बट यार आइडिया होता है कि किससे क्या हो, लाइक काफी बार हम लोग के साथ भी ओपन माइक्स में हुआ है ये वो, तो हम लोग किसी को ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये मत कर, बिकॉज वो हम खुद ही वो झंडा लेके जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो आई कैन नॉट से समवन टू नॉट डू समथिंग, बट देन हम लोग के साथ भी हुआ है, और हम लोग भी फिर उस सेंस में लेते कि यार फालतू का को खुद का ही अपन शो खराब कर रहे, किसी को नहीं पसंद आएगी, हाँ भाई ठीक है सॉरी, आपको नहीं पसंद आया, नहीं करेगी जोक। बट होता है ना कि काफी लोग का जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेंटिमेंट्स को नहीं लेके कुछ भी चीज पे बोल देते हैं, तो आई मीन हम लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियंस, not the people who are playing the joke, but people who are watching and listening to the joke, उनके मन में क्या आना चाहिए when somebody is, ठीक है कोई भी अगर जैसे आपने बोला ना कि यार देख रिलीजन पे भी एक जोक मारा जाता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप खाली हिंदुइज्म या इस्लाम या किसी के ऊपर, सिख के ऊपर, आप किसी क्रिश्चियन के ऊपर मार रहे हो, अगर आप रिलीजन को भी पकड़ रहे हो, आप कोई ऐसा चीज को उठा के बस फनी बनाए हो उसको, ठीक है, यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन द रिलीजन कि आप क्या मानते हो, क्या किसी का कोई भी कॉमिक का वो इंटेंशन नहीं होता है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, सबका इंटेंशन वही होता है कि हंसाऊं मैं तेरे को, तू हंसे, मैंने हंसा दिया, तू हंस गया, तू खुश, मैंने हंसा दिया, मैं खुश, सब हंस जाए। आइडियल सिनेरियो ये होता है आइडियली, मेरे को तो ऐसा लगता है कि लाइक हम लोग के जो जोक्स चलते हैं अंदर कॉमिक्स से, एक दूसरे की माँ को, मासी को गंदे गंदे जोक्स होते हैं, लाइक विच इज समथिंग मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, और हम लोग को पता है कि ये जोक है। अभी ये प्रॉब्लम है ना लोगों का कि लोगों का सेंटिमेंट सब चीज से जुड़े, किसी का सेंटिमेंट इस बॉटल से जुड़ा है, तो अभी मैं बॉटल, ग्रीन बॉटल मादर चौथ ऐसा बोलूं तो बॉटल को लेके लोग आ जाएंगे झगड़ने की, तूने बॉटल को कैसे बोल दिया,
तो एक वो भी है कि वो कौन सा लाइन डिफाइन करे कि किसका सेंटीमेंट किसको लेके हर्ट हो। हाँ तो obviously. काफी जोक्स ऐसे रहते हैं कि जैसे मेरे एक फ्रेंड का कुछ जोक है विच इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर कोई डायटी या वो जो भी है, और उसका जोक उस चीज पे है नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जोक है, अभी दिक्कत ये ना कि लोग कोई बोलना क्या चाहता है उसके उस पे नहीं जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है, कि ये जोक किस पे। बट तूने जोक में अगर भगवान का एक वर्ड भी यूज कर दिया तो तू उसके अराउंड फिर लोग उसको पकड़ लेते कि तूने ये कैसे यूज किया। वो लोग वो नहीं समझ रहे कि ये जोक, अभी वो लोग आर्ट फॉर्म के वो नहीं है, दे नो नथिंग अबाउट द आर्ट फॉर्म। हमको पता है, अभी ऑडियंस भी इंडिया में स्टैंड अप हार्डली 10-12 साल पुराना है, ऑडियंस भी इतनी नहीं है ये आर्ट फॉर्म को लेकर। तो वो काफी टाइम लगेगा इस चीज को सेटल होने में कि ये जो गैप है ना लोगों के और कॉमिक्स के बीच में, इसको गैप को फिल होने में काफी टाइम लगेगा। लोगों को ये चीज नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगी कि कोई स्टेज पे आके मादरचोद बोल रहा है, लोगों को वही के कि ये गाली कैसे दिया, बट वो इट इज वो गाली मतलब वैसा नहीं बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे हो, बट वो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है उसका। और वो है कि अगर तूने कुछ रिलीजियस या कुछ ला दिया बीच में, तो वो लोग वो नहीं देखेंगे कि इसके पीछे का व्हाट द जोक इज, उनको बस ये कि तूने ये कैसे बोला, तूने ये भगवान का नाम लिया। वही चीज मैं आपसे पूछा कि वो गैप को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं एज अ वॉचर, एज अ पर्सन हु इज सिटिंग। हम लोग को देख, जो स्टैंड अप ऑडियंस है, जो मतलब आर्ट फॉर्म को समझ गया है या जिसको पता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हाँ, उनको तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उन्हीं लोग का है जो ये हमारी ऑडियंस है ही नहीं। तो गैप कैसे कम करे? गैप कम होगा अगर जो लोग ऑडियंस नहीं है वो लोग मर जाएंगे, तो एक तो बहुत इजीली ये कम हो जाएगा, मतलब काफी टाइम लगेगा इसको। बट बाकी तो यार वो समझ से ही कम होगा आई गेस। एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई करा उनका, बट लोगों को फिर वो यार मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी है कि काम नहीं है तो फिर क्या ही करे। एक ये भी है कि मतलब तेरे पास काम है तो काम, जिसके पास काम होता है वो लोग लड़ने नहीं आते। हाँ। एक चीज ये है, बाकी तो गैप कैसे कम करे, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, गुड इंटरव्यू। आई मीन देखो, क्योंकि I have been a very huge fan of stand up for a long time. हम ऑफेंड होता है था बहुत सारा सिचुएशंस में जब, बट आई थिंक फॉर मी अब खाली आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम किसी और के बारे में तो बात नहीं कर पाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम अपने आप को उस हिसाब से एडुकेट किया है कि कोई लोग ठीक है, अगर मेरे को नहीं पसंद है किसी का स्टैंड अप, हम नहीं देखेगा, दैट्स इट। बट आई कैन नॉट गो एंड टेल दैट पर्सन ऊपर से कि यू नो तुम मत करो, तुमको अलाउड नहीं होना चाहिए, ये फालतू चीज है, ये है वो है, दैट्स नॉट माई राइट। वो मेरे को समझ में आया, बट वो तेरे को समझ आया ना कि तेरे जैसे लोग कितने हैं। अब जैसे आप अभी हम लोग जैसे अगर रिलीजन के बारे में भी बात करें, एंड देयर इज अ जोक ऑन अ रिलीजन, ठीक है, कोई भी रिलीजन, चलो हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जूस को हम लोग ले लेते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि कोई खाली बैठा हुआ होगा, उसको अगर कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया तो वो आके पकड़ेगा, ठीक है, दैट इज फाइन। बट हमको वही है कि इनको क्या समझ में आ जाना चाहिए आपके हिसाब से। जैसे हमको अब जैसे हम आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि हमको क्या समझ में आ गया, राइट? I cannot, because I always have been a part of this कि हाँ this is something great, people doing like something like this is something incredible, but उन लोग को कैसे समझाए कि you know ये जो बोल रहा है बंदा उसका इंटेंशन कैसे पकड़े, वो हम आपसे पूछ रहे हैं यार। कितनों को समझाया नहीं जाए, वही ना कि अगर मेरे को पता हो कि 5 लाख लोगों को मैं समझा दूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है ना, करोड़ों लोग हैं और करोड़ों अलग अलग दिमाग है। एंड वन थिंग आई एम श्योर इज कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इन जनरल लोग चूतिए हैं, क्योंकि लोग ऐसा नहीं कि खाली रिलीजन पे ऑफेंड हुए। लोग देख, चीज ऐसा है कि मैंने इतने टाइम से मैंने राइट लीनिंग लोगों को भी ऑफेंड होते देखा है, मैंने लेफ्ट लीनिंग लोगों को भी ऑफेंड होते देखा है। कोई का किसी का वो कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चीज हो जिसपे कोई ऑफेंड ना हो, और इसमें सब आ गए।
अनएजुकेटेड से लेके पढ़े लिखे लोग तक मैंने देखा है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे लोग भी आके बकचोदी करते मेरे उस पे कमेंट सेक्शन पे। मैंने एक बार कुछ तो एक कोई ट्रेंड चल रहा था कि कहीं का, तो आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, बट सीरिया वीरिया का कोई जगह का, कि सब लोग अपने प्रोफाइल पे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ फिल्टर लगा के इन सपोर्ट ऑफ कुछ विमेन डाइंग समवेयर ऐसा करके, एंड ये कर रहे, इंडिया में कर रहे थे, ये ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। हाफ ऑफ देम हैड नो आइडिया ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे, बस बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग ये कर रहे थे। तो मैंने बस उसका एक मजाक उड़ाते हुए पोस्ट सेम, मतलब उसका एक फॉर्मेट में कि दिस इज टू लाइक वैसा कुछ कुछ, मतलब स्पूफ था, इट वाज अ पैरोडी। उसमें एक बंदी ने कमेंट कर दिया कि हाउ इनसेंसिटिव ऑफ यू मेकिंग फन ऑफ गर्ल्स हु आर डाइंग। अभी शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मेरा इंटेंशन तुम लोग की हिपोक्रेसी पे था। सही बात कि तुम लोग को अगर तेरे को जेन्युइनली पड़ी है तो तेरे घर के पीछे एक झोपड़ी है, उधर काफी लड़कियां माल न्यूट्रिशन है, तो तेरे को वो नहीं देखना है, बट तेरे को भैंचोद ऑनलाइन तू कोई चीज देखा, तेरे को ऑफेंस लेना है, आके मेरा भी दिन खराब किया तूने अपना भी टाइम वेस्ट किया। तो ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप खुद के घर पे नहीं देख रहे हो, आप दूसरे के घर पे झांक रहे हो। और दूसरा बात ये भी कि यू नो कोई और कुछ और बोल रहा है तो बोल रहा है, तुम्हारे लिए बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो छोड़ो, तुम अगर सही कर रहा है तो तुमको दूसरा को बोलने का क्या जरूरत है, उसका अपना ओपिनियन है। यही सब लोग को समझ में नहीं आता है कि पीपल कैन हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अगर आपको जस्ट एन एग्जांपल, अगर किसी को पाकिस्तान नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, हम उसका ओपिनियन चेंज नहीं करने चाहेगा ना। अगर हमको पसंद है नहीं है, तुम फोर्स नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाट। नहीं पसंद है मत देख, मेरे को अनफॉलो कर दे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके अगर तुम बोल रहे हो तो यू आर नो लेस देन अ ट्रोल जो गाली दे रहा है। बस तुम खाली गाली नहीं दे रहे हो, बाकी दिन तो तुम भी खराब कर रहे हो। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ ग्रुप, humans in general are idiots. Okay, not diving more in this question, हमको एक question, मतलब I have asked this question to everyone. I don't know how comfortable you are going to be with this, but you know, being a person who actually advocates for mental health, मैं ये question सबसे पूछता हूँ। तो आपके हिसाब से when I say pandemic and mental health, तो आपके मन में क्या आता है? Like what do you think about in accordance to your own life? यार मैं तो बहुत खुश हो गया था, पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैंडेमिक आया तो, बिकॉज मेरे को काम करना नहीं पसंद, और जब पूरा दुनिया ही काम नहीं कर रहा है तो आई वाज मोर देन हैप्पी। कि पहले होता था कि मेरे को ऐसा खराब लगता था कि भैंचोद पूरा दुनिया आगे जा रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ। अभी ऐसा है कि पूरा दुनिया ही पीछे है ना, मतलब तुम कहाँ ही दौड़ लोगे। तो वो था। दूसरा, खाली अंदर रह रहे के मेरा दारू पीना ज्यादा हो गया था, दैट वाज इट। बाकी और तो मेरे को खाली एक वो था कि थोड़ा वो ये कोविड 1.2 बार ऐसा अच्छा खासा पीक आया, जब काफी केसेस बढ़ गए, सीरियस हो रहा था सब, तब मेरे को थोड़ा वो लगा कि यार मैंने काफी चीजों को काफी डिले किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अप, और काफी चीज प्रोक्रास्टिनेट करते रहा मैं टाइम के साथ। तो उसको लेके मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि मेरे को अभी क्या पता कब मर जाऊं, तो मेरे को एटलीस्ट ऐसा है कि मेरे 10 वीडियो उसके बाद मरूं। तो वो थोड़ा मैं उसको लेके फोकस्ड रहूं, बाकी मेरा मेंटल हेल्थ पे इतना असर तो नहीं पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उसके इनफैक्ट चीजें जब खुल गई तब मेरा खराब हुआ कि मैं चलो वापस काम करना पड़ेगा। So my mental health degrades when world is working. It is very much good when no one is working. So I was very happy to be very honest. आपका stand up culture चल रहा था, in the sense you were doing online shows and everything. Yeah, चल रहा था, but it was not fun. Like it was very sad. समझ में आता है। ठीक है। एक और serious question. अभी just I had this in my mind. You know, there are not a lot of, I won't go to other genders, but there are not a lot of women in stand-up culture. अब देखा जाए तो everyone, no offense to any stand-up comedian, but everyone who has got famous has been, you know, कहीं ना कहीं related to some other famous celebrity or
मतलब ऑलरेडी मेड अप जो बन चुके हैं अच्छा खासा कॉमेडियन, उनके साथ या तो उन लोग नहीं रहा है, या फिर इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैव सीन ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियंस इन विमेन, एंड अभी भी हम लोग नहीं देखते. जैसे अगर आपका देखा जाए तो योर जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड. इस जर्नी में भी वी डोंट सी अ लॉट ऑफ women come out. आपके हिसाब से उसका रीजन क्या हो सकता है? Is there a lot of abuse about it, or it's just that कि we don't see it because they don't take up the lot of abuse. I mean, I have seen a lot of women got abused just because they have got on stage and have told something about, जैसे अब देखो ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप अगेन है कि हाँ, women जब उन लोग जाते हैं स्टेज पे, अगर स्टैंड अप कॉमेडी करना भी है तो they talk about men के अगेंस्ट बोलते हैं, men का मजाक. यार that is very obvious, not just about women. ठीक है, बट वही है ना, उनको हम लोग गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं. अब वही चीज का मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है, why don't women come up to this space? Lot of women, I mean, there is not a lot of women that we see. I guess because there are women are not funny. नहीं This is going to नहीं blow up. यार अभी ये हाँ मेरे को पता है, मस्ती कर रहे थे पूरा asshole. यार I don't know how to change this because see वो एक तो in generally सोसाइटी वैसा है कि एक चीज कोई लड़के को करना हो और लड़की को काफी हर्डल्स होता है उस चीज तक. वो लोग 10 बजे से बाहर नहीं निकल पाते. 10 बजे के बाद तो तू सोता है अपन 11 बजे अभी ये कर रहे हैं, उसके बाद मैं अभी एक दोस्त के साथ बाहर जाऊंगा. सो इट इज वहां पे काफी बैरियर्स आ जाते हैं. ये एक रीजन हो सकता है. बाकी या क्या क्या बताऊं मैं. सी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. या हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें पहले तो एक वो टर्म होता है फीमेल कॉमिक. आई डोंट लाइक दैट टर्म. आई डोंट लाइक मेल कॉमिक जैसा कोई टर्म नहीं है ना. मतलब इसको भी जेंडराइज करो ही मत कि बहनचोद ये अब स्टेज पे आ रही है एक नहीं कॉमिक है बहनचोद, फनी है वो, उसका बेंचमार्क है. दूसरा वो परफॉर्म करिए कॉमिक. शी इज अ कॉमिक, अ गाय इज अ कॉमिक. और काफी हम लोग का एक ऐसे कोई ग्रुप वूप रहते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें ऐसा कोई बात निकला था कि फीमेल शुड बी एडमिन ऑफ द ग्रुप सो दैट मोर विमेन. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है लोग लॉजिक घर पे छोड़ के बात करते हैं. अभी तुम किसी चीज को उसको नो डाउट सोसाइटी में वो काफी टाइम तक ऑपरेशन था, अभी भी है, बट उसको एड्रेस करना जरूरी है. बट उसके साथ ही वो भी जरूरी है कि तुम चीजें नॉर्मलाइज कर दो, कि यू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल. तो किसी को एक 10 जनरली सब ओपन माइक में रेशियो भी यही होता है, 7 परफॉर्मर लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है. तो देख कोई भी सीन में तुम नए जाओ, तुम लड़के हो या लड़की हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट सर्कल. उसमें फिर वो भी है कि अभी हम लोग अहमदाबाद में 2 से 3 रूम चलाते हैं. एक रूम मैं चलाता हूँ, एक रूम सुनील करके एक है, और एक रूम श्रीनिधि करके एक है, वो चलाती है. तो फर्स्ट टाइम उसने किया था श्रीनिधि ने स्टैंड अप. इट वाज लाइक 1-2 साल हो गया उसको, और वो अभी एक रूम चलाती है. रूम चलाना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि एक सिटी में लिमिटेड रूम चलते हैं 4-5. वो रूम 2 साल से चला रही है. ठीक है, बहुत अच्छे से चला रही है. शी हैज बीन मैनेजिंग इट वेरी वेल. शी हैज बीन क्यूरेटिंग द शोज वेरी वेल. तो वो हो रहा है. और वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है, नहीं. पूरे गुजरात में एक खाली अकेली वो बंदी है जो क्यूरेट कर रही है, रूम चला रही है. देयर इज नो वन अदर देन हर, आई गेस. तो यही जो मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा था, सो वो ग्रुप में ऐसा डिस्कशन हुआ कि क्या क्या कहते थे. तो नॉर्मली कि हाँ लड़कियों को एडमिन बना दो, बट द इग्नोरेंस ऑफ दैट ग्रुप वाज कि वो ग्रुप में नो वन टॉक्ड अबाउट श्रीनिधि जो 2 साल से वो रूम चला रही है. तो वो लड़की है ना बहनचोद, तुम एक का ओवरलुक करके यू कैन नॉट. वैसा नहीं है कि मेरे को 2 गरीब को ऊपर लाना है तो एक को नीचे दबा के दूसरे को, तुम दोनों को साथ में लाना है. दैट इज द थिंग. दूसरा है कि जितना नॉर्मलाइज करो उतना बेटर है. काफी ये सारे शोज भी आ रहे हैं, उसमें रेशियो 5-5 का है. कॉमिक्स में 5-5 का रेशियो है. बाकी काफी ये दूसरे सारे शोज में भी कॉमिक्स आ रही है. स्टर्लिंग रिजर्व के कुछ शोज है. और
यार वो तो नहीं पता कि कैसे उसको आगे लाना चाहिए, बट आई गेस नॉर्मलाइज कर दो। और जो भी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम गुजरात में हो, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, और तुम फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म आता है गूगल फॉर्म टू परफॉर्म, तुम लड़की के नाम से फॉर्म भर के देखो और तुम्हें स्पॉट ना मिले, 10 ओपन माइक में बैक टू बैक तुम्हें सब में स्पॉट्स मिल जाएगी। सो हम लोग ने भी, वी आर ट्राइंग कि इवन एक कोई बंदी हो, नई परफॉर्मर हो, और we try to give her as many spots as possible so that she gets accustomed, she gets used to it। और काफी, बट वो भी है, फिर वो लोग काफी लोग खाली अभी सीन में अहमदाबाद में हर्षिता और श्रीनिधि दो ही है कॉमिक जो कंसिस्टेंट है, बाकी 5-6 और सबका अपना अपना आते जाते रहते। तो उसमें तो मैं किसी को घर से पकड़ के तो ला नहीं सकता हूँ कि भाई आओ कॉमेडी कर लो, सीन में लड़कियां कम है तो वी वांट यू, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। ओके, हाँ, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी विथ योर आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन के लिए ऐसा आंसर ही मिलना जरूरी है। एंड यू अग्रीड है कि आपको खुद को भी नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, बट एज अ होल थिंग नॉर्मलाइज अगर कर देंगे तो शायद अपॉर्चुनिटी नॉर्मलाइज करें, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट एज कंफर्टेबल एंड एज इजी फॉर देम एज पॉसिबल। एक एडवाइस आप क्या देना चाहोगे टू द पीपल हु वांट टू गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी और हु आर स्टक इन बिटवीन? Don't get into this. Do your job, do your business, keep your parents happy, keep your girlfriend happy, keep your wife happy, get married, have a son, have a daughter, have a good life. Don't get into this. Art form is not that fun how it looks from outside. It is very sad, very depressing. And if you come, get a good mental health advisor with you. नहीं स्टार्ट करो, मत करो। अगर करना है तो हाँ, एडवाइस ये है कि करना है तो एकदम लो की, मतलब कम विथ नॉट जीरो एक्सपेक्टेशंस, माइनस में रह के चलना कि तुम 5 साल तक कुछ नहीं करोगे, तुम्हें 5 साल तक 3 लोग भी देखने नहीं आएंगे। तो अगर तुम इतना खराब एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो तो 10 लोग आएंगे तो तुम्हें खुशी होएगा। तो डोंट थिंक कि तुम, मतलब जितने लोग यूट्यूब पे, जरूरी नहीं है जितने, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस, जरूरी नहीं है जिसके सबके यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हो उसके उतने टिकट सेल्स में भी कन्वर्जन हो। सब उल्टा है, कितनों के यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलते, वो लोग अच्छी टिकट नहीं चलते, ऐसे चलना नहीं चलना इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग के काफी वीडियोस है फॉर टिकट सेल्स 7 टिकट 8 टिकट। तो इट इज अ रियल लाइक लेजिट स्ट्रगल। तुम एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो और तुम्हारा खाली उसका ट्रैवलिंग का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तो तुम आराम से इसको अगर चालू करना है तो ये मत सोच के चालू करो कि ये 1 साल का चीज है या 2 साल का चीज है या 6 महीने का चीज है। स्टैंड अप तुम अगर स्टार्ट करोगे तो ये 30 40 50 साल तक, जब तक तुम फिजिकली फिट हो और बोलने लायक हो तब तक ये चलता रहेगा। और ये इट इज कोई तो, ये हर कॉमिक कोई बोलता है कि इसने रेफरेंस बोला था, बट मेरे को पता नहीं ये ओरिजिनल लाइन किसका है। तो मेरे को सौरभ घोष एक बार अहमदाबाद आए थे तब उन्होंने बोला था, बट किसी ने बोला कि ये किसी और कॉमिक में भी बोला था। तो द लाइन इज कि इट इज नॉट अ स्प्रिंट रेस, इट इज अ मैराथन। सो मैराथन 400 मीटर का है तो पहली बार में पूरा एनर्जी नहीं देते, बचा के रखो 4 लैप कवर करने। और डोंट बी इन अ हरी, टाइम के साथ होएगा सब। जरूरी नहीं है कि 6 महीने में तुम आसमान में हो जाओ, धीरे धीरे 5 टिकट 10 टिकट 15 20 25 ऐसे। हाँ, ग्रेट एडवाइस। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज कि आप अपने में क्या डिफरेंस देखते हो थ्रू आउट योर स्टार्टअप, आई मीन योर स्टैंड अप जर्नी, इन द सेंस व्हेन यू स्टार्टेड और आज के लक्ष्य में आप डिफरेंस क्या देखते हो? इन टर्म्स ऑफ आर्ट फॉर्म कि मेरे एज अ ह्यूमन कुछ भी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ या फिर ये 4 साल में क्या इम्पैक्ट लेके आया आपके अंदर? इसका इम्पैक्ट ये है कि मेरे थोड़े ओपिनियंस और आने लगे, मेरे में थोड़े थॉट्स मेरे और स्ट्रांग होते गए। दूसरा एक चीज ये है कि मेरे में थोड़ा पेसिमिस्ट अप्रोच ज्यादा हो गया कि सो स्टैंड अप में मोस्टली कोई ऐसे अच्छी चीजों की बात नहीं करता है, जनरली वेंटिंग आउट रहता है। और तुम जो भी नेगेटिव चीज है ये वो, तो तुम योर अल्टीमेट गोल इज टू गेट लाफ्स, बट उसके पीछे का प्रोसेस थोड़ा वैसा रहता है। तो तुम थोड़ा सोचने में ऐसा नेगेटिव अप्रोच हल्का मेरा हो जाता है,
आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा मेरा क्रिबी नेचर ज्यादा हो गया, मैं हर चीज पे ऐसा चिड़चिड़ा गया, क्या ये क्या है, पग पहन चुकी है क्या, वैसा वैसा थोड़ा हो गया। तो बाकी तो अच्छा गुड ह्यूमन आई एम। Okay. I mean, to be very honest, I had, as you said, expectation mat rakho. I didn't have any expectation from the whole call, whole recording, and I'm very happy with the whole conversation आपके साथ मेरा हुआ, because anytime I do a conversation with anyone, I try to know about that person more before getting involved in a conversation, so that दोनों थोड़ा सा comfortable रहे. बट अब ऐसा लगा कि यू नो इट वाज रियली नाइस इंटरैक्टिंग विद यू. आप तो एक तो आप ओपन हो चुके हो. आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट समवन एल्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज आप स्टैंड अप हो जाता है. तो दिस इज रियली अमेजिंग. काफी कुछ मेरे को भी पता चला, और आपका ओपिनियंस देख के ऐसा लगा कि यू नो हर चीज का जो दो पहलू वाला बात होता है ना, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पहलूस. एक ही दो ही नहीं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना, सब ग्रे है यार. कि तुम हम लोग अपने एंड से सोचते हैं कॉमेडियंस, बट ऑडियंस का भी एक पर्सपेक्टिव रहता है कि वो भी है. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज गलत है या कोई एक चीज सही है. बहुत सारी चीजों में थोड़ा तुम सही, थोड़ा तुम सही, थोड़ा तुम गलत, थोड़ा वो गलत. Absolutely. तो यार को एग्जिस्टेंस भी ऐसे ही चलेगा ना, कि मेरे को तू नहीं पसंद, मेरे को तेरा चश्मा नहीं पसंद, तो मैं उसको फोड़ थोड़ी दूंगा यार. तू पहन तेरा चश्मा, मैं पहनूं मेरा जैकेट, क्या दिक्कत है? तेरे को जो खाना है वो खा, मेरे को जो खाना है मैं खाऊं. भाई कि अपना ओपिनियन अपने तक रखो तो ज्यादा बेटर है, rather than आप किसी और पे फोर्स करो, तो वो ज्यादा ठीक है. I hope this episode helped you understand about how everything in life can have so many different perspectives. But hey, if it didn't, no worries. Thank you so much for listening till the end. Do comment down below on how you feel about this episode, and if there is anything else that I can improve upon. And also like and subscribe to my channel. It would really help me grow. And if you want to follow me and the guests in various social media platforms, the links are on the description below. Thank you so much again. Remember, listen, understand, and read.